बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19C in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 को database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19C_22.1 and under this folder we create two folders with the name DB and ORDS respectively. सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_22.1 के नाम का और उस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के बिलतरतीब। Unzip Oracle database 19C and DB folder which we have just created. Unzip करेंगे Oracle database 19C को DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। Download ORDS 21.4 through this link. However, we have already downloaded ORDS 21.4 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड किया जा सकता है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Unzip ORDS 21.4 in ORDS folder which we have just created. So we do not need to copy and paste ORDS folder. अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। Download Oracle Apex 22.1 through this link. However, we have already downloaded Oracle Apex 22.1 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड किया जा सकता है, अलबत्ता हमने उसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। Oracle Apex 22.1 downloadable file name is like this. So we will unzip this file in 19C_22.1 folder. So we do not need to copy and paste Apex folder. Oracle Apex 22.1 की जो फाइल है जिसको डाउनलोड किया है उसका नाम जो है वो ये है। तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फाइल को 19C_22.1 के फोल्डर के अंदर। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा।
The Java version which we are using is Java 8 update 211. जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है. Run database setup with administrator rights. डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से. Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Option जो है create and configure a single instance database का रहेगा. Next का बटन दबाएंगे. Option will be desktop class. Hit next button. Option जो है वो desktop class का रहेगा. Desktop class रहेगा. Next का बटन दबाएंगे. Option will be use Windows built-in account. You can use other option as well. ऑप्शन जो है वो यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट का रहेगा. आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट का बटन दबाएं. हिट नेक्स्ट बटन. यस. असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम, पासवर्ड and confirm password from your choice. Furthermore, uncheck create as container database option. Hit next button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से और क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. Yes. Now we will hit install button. अब हम install का बटन दबाएंगे. Oracle Database 19c has installed. Hit close button. Oracle Database 19c जो है वो install हो चुका है. Close का बटन दबा दें. ओपन SQL Plus, कनेक्ट विद SSHDBA. SQL Plus खोलेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे SSHDBA से. Check SGA maximum size by running show parameter SGA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it while running this command. अब हम SGA maximum size पता कर रहे हैं show parameter SGA की कमांड चला के. अगर ये 3000 MB से कम हो तो हम इसको बढ़ाएंगे ये कमांड चला के. तो ये 3000 MB से कम है. It is less than 3000 MB.
Now we will shut down database by running shut immediate command. We shut down database and start it again, so we will see the reflection we did in SGA maximum size. हम डेटाबेस को बंद करते हैं और उसको दोबारा चलाते हैं ताकि हम तब्दीली देख सकें जो हमने की है SGA मैक्सिमम साइज में. स्टार्ट डेटाबेस बाय रनिंग स्टार्टअप कमांड. डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप की कमांड चला के. Check SGA maximum size again in order to make sure the changes we did has reflected or not. अब हम दोबारा SGA maximum size पता कर रहे हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो गई है या नहीं. तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes we did has reflected. Exit SQL+ को बंद कर दें. Open command prompt and reach where Apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है. रन SQL+ स्पेस /nolog SQL+ स्पेस /nolog लिखेंगे. कनेक्ट विद SysSDBA. कनेक्ट होंगे SysSDBA से. Now install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 22.1 has installed. Oracle Apex 22.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase. अब हम ये कमांड चलाएंगे. पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे उर्फों में. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. Command prompt खोलेंगे.
एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड। अब हम ये कमांड चलाएंगे। Provide a configuration path where we want to configure ORDS। कॉन्फ़िगरेशन का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन। ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। To find your port, navigate to Oracle Aura DB19 Home 1 Expanded। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB19 Home 1 में आए, इसको खोलें। नेट मैनेजर पे आए, इसको खोल लें। कम टू नेट मैनेजर, ओपन इट। कम टू नेट मैनेजर, ओपन इट, एंटर। नाउ सेलेक्ट ऑप्शन 1 और 2, बोथ ऑप्शन विल बी एप्लीकेबल। अब हम कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों ही काबिल कबूल होंगे। एंटर का बटन दबाएं। Provide password and confirm password for ORDS public user, which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को, जो कि Oracle लाएगा छोटे हरफों में। Administrator username will be sys। Provide password and confirm password which you provide during Oracle database installation। Administrator username जो है वो sys रहेगा। पासवर्ड और confirm पासवर्ड दे दीजिए जो आपने Oracle database की इंस्टॉलेशन के दौरान में दिया था। ऑप्शन विल बी sysops, हिट एंटर बटन। ऑप्शन sysops रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी temp, हिट एंटर बटन। ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी sysops, हिट एंटर बटन। ऑप्शन sysops रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी temp, हिट एंटर बटन। ऑप्शन temp रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन। ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी एपेक्स पब्लिक यूजर, हिट एंटर बटन। ऑप्शन एपेक्स पब्लिक यूजर रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। स्पेसिफाई पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स पब्लिक यूजर विच विल बी Oracle इन लोअर केस। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे एपेक्स पब्लिक यूजर को, जो कि Oracle लाएगा छोटे हरफों में। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन।
Provide password and confirm password for both Apex Listener and Apex REST Public User, which will be Oracle in lowercase. एंटर का बटन दबा दें। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे एपेक्स लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर को, जो कि ऑरेकल रहेगा छोटे हरफों में। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। कॉपी इमेजेस फोल्डर फ्रॉम दी एपेक्स इंस्टॉलेशन फोल्डर। कॉपी करेंगे इमेजेस का फोल्डर एपेक्स के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से। एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और उसको इस पते पर चिपका करेंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Provide a path till images folder to apex static resource location। अब हम apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड पोर्ट फ्रॉम योर चॉइस और लीव इट एज इट इज। आप पोर्ट दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.1. Remember, do not close this command prompt, because if it closes for any reason, we cannot access Oracle Apex 22.1. However, we can reopen it as well. जब Oracle REST Data Services Initialize लिखा आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं। Open command prompt with administrator rights, reach where ORDS folder is available। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे। Now we will reach where ORDS folder is available। अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है, और जब वहाँ चले जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command।
Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with database 19C has installed in Windows 10. Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।